Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta. I am working as an assistant professor, Department of Botany, Government Naveen College, Risali, Bhilai. Today, I am going to discuss about the topic plant tissue culture technique. Plant tissue culture technique BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस का पार्ट है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे. So, my today's lecture topic is on plant tissue culture technique. Let's discuss. These are the synopsis. Introduction of plant tissue culture, need of plant tissue culture, contribution of scientists in plant tissue culture, concept of totipotency, types of plant tissue culture, role of hormones in plant tissue culture, basic requirements for a tissue culture laboratory, steps of plant tissue culture, applications of plant tissue culture. So these are the topics which I am going to discuss one by one. Now, first of all, let's know what is plant tissue culture. Plant tissue culture क्या है? Plant tissue culture is the culture of cells, tissue or organ under controlled environmental conditions following aseptic precautions. किसी भी प्लांट के टिश्यू का, ऑर्गन का या सेल का एक प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और एसेप्टिक प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए कल्चर करना ही प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है. Why there is a need of plant tissue culture? Plant tissue culture की नीड हमें क्यों पड़ती है? Plant tissue culture is important for plant modification and improvement. यह important है secondary metabolites के प्रोडक्शन के लिए, endangered plants को सेव करने के लिए, साथ ही ऐसे कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जैसे कि ऑर्किड्स, डालिया, इन सब के प्रोडक्शन के लिए, क्लोनल प्रोपगेशन के लिए, मास प्रोपगेशन के लिए भी एंड इवन पैथोजन फ्री प्लांट्स को जनरेट करने के लिए भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज कर सकते हैं और ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. नाउ हाउ प्लांट टिश्यू कल्चर इज डन. प्लांट टिश्यू कल्चर को कैसे किया जाता है? तो दिस इज द पिक्चर. इस पिक्चर से हम ये देख सकते हैं कि होल प्लांट में से कोई भी एक पार्ट हम ले सकते हैं, बर्ड्स, लीव्स और इवन अ सिंगल सेल हम ले सकते हैं, जिससे कि जब हम उसे कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में कल्चर करते हैं यूजिंग प्रॉपर मीडिया, तो वह पूरे प्लांट में रीजनरेट हो जाता है. और टिश्यू कल्चर के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिच मीडियम की जरूरत है, साथ ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है और एसेप्टिक प्रिकॉशंस को फॉलो करना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर. So these are the important requirements. Now बहुत सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस रहे हैं जैसे कि हुक, ल्यूवेनहुक, शिल्डन, श्वैन एंड वर्शियो. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ गॉटलिब हेबरलैंडर. In 1902 he was the first to develop the concept of totipotency. Now these are the further contributions of some more scientists in the field of plant tissue culture. Now what is the totipotency? Totipotency is the capacity of a plant cell to develop into an entire plant. एक छोटे से प्लांट सेल की वो क्षमता जिससे कि वह पूरे प्लांट में रीजनरेट हो सके, वह कंसेप्ट को टोटिपोटेंसी कहते हैं, जिसे गॉटलिब हेबरलैंडर ने दिया था. जैसे कि ये कैरेट के स्मॉल सेल्स से भी अगर उसे एक प्रॉपर कल्चर मीडिया में कल्चर किया जाए तो वह होल प्लांट में रीजनरेट हो जाता है. इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कंसेप्ट ऑफ totipotency. Now, plant tissue culture are of various types like embryo culture, cell culture, callus culture, pollen culture, seed culture, meristem culture, protoplast culture, and organ culture. So these are the various types of plant tissue cultures. Now, what is the role of hormones in plant tissue culture? Plant tissue culture में आखिर hormones के क्या रोल हैं? So you should know that hormones play a very important role in plant tissue culture. They are actually the growth regulators and they have different regulatory effects on growth and development in plant tissues and plants. Important hormones की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, these are very important hormones. And one of the principal hormone that is auxin stimulates root development. ऑक्सिन रूट के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है
और दूसरा हार्मोन साइटोकाइनिन शूट डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और प्लांट के डेवलपमेंट को साइटोकाइनिन तथा ऑक्सिन दोनों के ही रेशियोज डिटरमाइन करते हैं। दोनों के रेशियो पर ये प्लांट का जो ग्रोथ है वो निर्भर करता है। और साथ ही मुराशिक और स्कुग्स मीडिया ये प्रिंसिपल मीडिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है प्लांट के ग्रोथ के लिए। दिस इज द मुराशिक एंड स्कुग्स मीडिया। नाउ अब हम समझेंगे कि इन विट्रो और इन विवो क्या है। व्हाट इज इन विट्रो एंड इन विवो? So the process which is carried out in sterile culture and under controlled condition in the laboratory. ऐसे प्रोसेस जो लेबोरेटरी में स्टेराइल कल्चर और कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर किया जाता है वह इन विट्रो कहलाता है। दैट मीन्स इनसाइड द लेबोरेटरी। वेयरएज इन विवो का अर्थ होता है फील्ड में प्लांट को ग्रो कराना अंडर नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होने चाहिए फॉर इन विट्रो कल्चर? न्यूट्रिएंट मीडिया, एसेप्टिक कंडीशन और टिश्यू का एरेशन, यानी कि एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया, पूरे एसेप्टिक कंडीशंस को फॉलो करना है और टिश्यू को प्रॉपर एरेशन या एयर की जरूरत होती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए फॉर इन विट्रो कल्चर। नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। अगर एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो पहले हमें चाहिए होता है इक्विपमेंट्स एंड अपैरेटस, वॉशिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, मीडिया प्रिपरेशन रूम होना चाहिए, एक स्टरलाइजेशन रूम की जरूरत होती है, एसेप्टिक चेम्बर चाहिए फॉर कल्चर, कल्चर रूम्स और इंक्यूबेटर्स कल्चर को रखने के लिए, लाइट एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस एंड ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग एरिया, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए भी ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्डिंग एरिया भी होना चाहिए। तो इतनी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में फुलफिल होनी चाहिए। Now these are the pictures of various instruments and equipments: autoclave, oven, laminar airflow, scalper, blade, forceps, and 70% ethanol. Now see how the sections are cutting in plant tissue culture technique. This is the picture, explant section cutting. This is the culture room in which the cultures are kept. Now basic steps in प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के अब हम बेसिक स्टेप्स को जानेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का सिलेक्शन करना पहले। एक्सप्लांट प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, तो एक्सप्लांट को पहले सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर उसे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन मीन्स एक्सप्लांट्स में जो भी जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे किल किया जाता है either by using HgCl2 that is mercury chloride or by using the antibiotics or by using the bavistine which works as a fungicides. Then preparation and sterilization of culture media. इसके बाद कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है और उसे भी स्टरलाइज करना उतना ही जरूरी है ताकि उसे बैक्टीरिया या जर्म्स से फ्री रख सके। नेक्स्ट स्टेप होता है इनॉक्यूलेशन का। उसके बाद एक्सप्लांट को प्रॉपर मीडिया में इनॉक्यूलेट किया जाता है। देन इंक्यूबेशन, फिर इंक्यूबेशन किया जाता है प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी में। देन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स उसे सब कल्चरिंग की जाती है टाइम टू टाइम एंड देन एक्लीमेटाइजेशन किया जाता है। एक्लीमेटाइजेशन में प्राइमरी हार्डनिंग और सेकेंडरी हार्डनिंग होता है। उसके बाद फाइनल प्लांटेशन होती है फील्ड कंडीशन में। सो यहाँ से हम फिक्स से समझेंगे। सबसे पहले एक्सप्लांट का इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन ऑफ द एक्सप्लांट, देन शूट का मल्टीप्लिकेशन हुआ, देन इन दिस डायग्राम सब कल्चर हो रहा है शूट का, फिर सब कल्चरिंग इन शूटिंग मीडिया, इनॉक्यूलेशन इन रूटिंग मीडिया। अब उसे रूटिंग मीडिया में डालेंगे। प्रॉपर रूट्स आ जाने के बाद हम प्लांट्स को बॉटल से बाहर निकालेंगे और फिर हम एक्लीमेटाइजेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। और एक्लीमेटाइजेशन में हम सबसे पहले करेंगे प्राइमरी हार्डनिंग। प्राइमरी हार्डनिंग हम करेंगे ग्रीन हाउस में, कोकोपिट ट्रे में। आफ्टर 1 month ऑफ प्राइमरी हार्डनिंग हम प्लांट्स को ट्रे से बाहर निकालेंगे एंड देन हम फिर उसको करेंगे सेकेंडरी हार्डनिंग। सेकेंडरी हार्डनिंग में भी हम प्लांट्स को 1 month के लिए रखेंगे इन प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स कंटेनिंग कोकोपीट एंड मैन्योर। आफ्टर 1 month हम प्लांट्स को फील्ड में फाइनल प्लांटेशन के लिए प्लांट कर सकते हैं अंडर नेचुरल सनलाइट।
नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टिश्यू कल्चर टेक्निक को प्रभावित कर सकते हैं? तो वो है जीनोटाइप एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट, कल्चर मीडियम, कल्चर कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड हार्मोन्स। ये सभी फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो टिश्यू कल्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? हायर यील्ड हमें प्राप्त होता है प्लांट का। टिश्यू कल्चर टेक्निक में सीजन का कोई बाउंडेशन नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीजन। साथ ही बहुत ही कम समय पर हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स रीजनरेट करा सकते हैं। राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी होती है, नोवेल कंपाउंड्स को प्रोडक्शन कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स विद यूनिफॉर्म क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। These are the references. That's all. Thank you. Thank you.